Good afternoon. My topic for the day is little innovations go a long way. I want to speak about my own experiences as a teacher trainer, as an administrator and head of a school, and of course as an ardent learner. What I have learned over the years from my seniors, from my team, from my juniors, from my colleagues, and even from my students, I tried to implement it in my little scope and little area. मैंने रिसेंटली एक बड़ा चैलेंजिंग स्कूल ज्वाइन किया जहाँ पर कहा जाता था बड़ा डिसिप्लिन है, स्टूडेंट्स सुनते नहीं हैं टीचर्स की। जब मैं वहाँ जाकर के बैठा तो वाकई लगा कि हाँ ज़रूरत है यहाँ पर। और मैंने क्या किया, मैंने देखा कि इस बाउंड्री के अंदर मेरे हाथ में जो कुछ है जिसको मैं कर सकता हूँ वो क्या क्या है। वो थे 3000 स्टूडेंट्स और करीब 100 टीचर्स। उनसे मैंने बात की, उनसे पूछना शुरू किया, जैसे शाम की असेंबली होती थी, ये स्कूल किसका है, मेरा, टीचर्स का या आपका? इस स्कूल की दीवारें किसकी हैं, इस स्कूल के पौधे किसके हैं, इसको साफ कौन कर सकता है, 4 स्वीपर या 3000 स्टूडेंट्स, 100 बच्चे और एक प्रिंसिपल? सो नेचुरली मैंने क्या किया, मैंने बजाय उनको लेक्चर देने के मैंने उनसे फीडबैक लेना शुरू किया। और आज वही स्कूल आप आकर के देखिए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप वीडियो बनाइए उसका, वहाँ पर एक सिंगल पौधा या फूल को भी कोई बच्चा टच नहीं करता है। वही स्कूल है जहाँ पर बच्चे 6:20 तक पढ़ाई करते हैं शाम को। सो व्हेन आई जॉइंड दिस स्कूल, इट वाज लाइक एनी अदर गवर्नमेंट स्कूल वेयर आई हैड अबाउट roughly 3000 students and only 25 classrooms to sit. We required 44 sections for the students to sit, but there were only 25 rooms available. Of course, the building was under construction, but due to this construction, we had all the little space. And in that little space, what I found was maybe a lot of students were sitting in different classes. So I called my team members and invited their comments and suggestions what we could do about this seating plan. And then we came with the idea that we can merge sections like class 11th A, B, C, if they can sit together. Similarly 9th A, B, C, they sit together. So we made a space, and of course there were 2 teachers who could teach. So one would just stay there at the back, observe the class and note the best practices of the teacher, and the other one may teach, and the next day they can switch over their roles. It usually happens when you have a lot of students, teacher is sort of handicapped to give feedback and check all the work of the students. So in consultation with my senior teachers, I made it a point that every single notebook of every single child, at least once in an academic year, will come to my table. I'll personally check it, sign it and affix my stamp, and also write whether the work is complete or incomplete. If the work was incomplete, the child was given 2 or 3 days time to complete it. And here came also the learner's autonomy. How? So what I did, I made a team of about 4 to 5 students in every class who were very regular students and who also knew what was going on in all the subjects. So they would come with a list of students and the packet of all the notebooks of the classroom, and they would actually tell me, sir, in this subject इतना काम हो गया है और इस notebook में इतना ही हुआ है. तो I came to know कि ये notebook incomplete है and this is the complete work. So we would segregate incomplete work, complete work, and if it is incomplete, let the teacher know why it is incomplete, and they will talk to the students and motivate them कि आपको अपना वर्क पूरा करना है, और आपके प्रिंसिपल साहब ने भी कहा है you have to complete your work in time. So gradually, और उसका नतीजा क्या हुआ, I tell you with confidence कि पिछले 3 साल से जहां हर क्लास का रिजल्ट ऐसे जा रहा था, हमें इस साल 2017 का रिजल्ट जो है मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज हर क्लास में 20 है. तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच स्टूडेंट्स ने सोचा कि हमारी कॉपी जाती है, हमारी नोटबुक जाती है प्रिंसिपल के पास में, तो थोड़ी ठीक भी होनी चाहिए, कवर्ड भी होनी चाहिए, इट शुड बी नीट एंड क्लीन एंड द हैंड राइटिंग एज वेल. तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसमें कवर कर ली. सिमिलरली टीचर्स को एक प्रॉब्लम और आया करती थी हमारे स्कूल के अंदर कि स्पेस बहुत कम है, ख़ासतौर से खेलने की जगह नहीं है. माई स्पोर्ट्स टीचर एंड द अदर टीचर्स हु आर रियली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स. अब एक बहुत बड़ा हमारे को वॉलीबॉल का नेट होता था. अब वॉलीबॉल खेलने के लिए या उसी से हम बैडमिंटन भी खेल लेते हैं. तो यूजुअली व्हाट हैपेंस कि बैडमिंटन एक बार में 4 लोग खेलते हैं मैक्सिमम,
और वॉलीबॉल 10-12-15 लोग खेलते हैं। तो हमने क्या किया, वो डबल कर दिया स्ट्रेंथ को। बैडमिंटन खेलो 8 लोग खेलो, क्योंकि बड़ा नेट है हमारे पास में और एक बार में इतने लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। ऑफ कोर्स ये गेम्स के रूल के खिलाफ है, लेकिन यहाँ बात प्रैक्टिस की थी, बच्चों को एक फिजिकल फिटनेस की बात थी, बच्चों को फिजिकल फिटनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात थी। सो वी डिड दैट। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एज हेड ऑफ स्कूल वी हैव टू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर इज well maintained for the students, but when I joined the school I found there was hardly anything for the students to sit on, not to talk about the benches. And I would like to praise my colleague here, the HOS of morning shift, Mrs. Sudesh. She is such a positive lady. When we had a talk together about it, we decided to do something. She had got about 10 carpets, daris. I didn't have any, so we collaborated all the 10 daris from girls school morning branch, and then I bought about 10 to 12 daris from my budget which was available with me, and we collaborated all the 22 daris. और वो दरी सुबह बेची जाती थी अगर 7 बजे, तो शाम को 7 बजे तक बिछी रहती थी। स्वीपर आते थे, उसको दरी को हटाया, स्वीप किया और फिर से उसको बिछा दिया। देन आई टॉक टू सर्टेन प्रिंसिपल्स जिनके यहाँ थोड़ा थोड़ा फर्नीचर एक्स्ट्रा था। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा हाँ हमारे पास इतनी डेस्क हैं अवेलेबल। तो अब मैं अपने 2 कलीग्स का नाम स्पेशली लेना चाहूँगा, मिस्टर BK शर्मा एंड मिस्टर वर्मा, जिन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे यहाँ से फर्नीचर ले सकते हैं। फिर मैंने अपने सीनियर ऑफिसर से कोऑर्डिनेट किया, एंड देन जो हमारी मॉर्निंग शिफ्ट इंचार्ज थी उनसे कोऑर्डिनेट करके वी गॉट अबाउट 600 बेंचेज इन ऑल दिस ईयर, एंड नाउ एवरी सिंगल स्टूडेंट कैन सिट ऑन अ बेंच। एक और अभी बिल्कुल रिसेंटली हुआ हमारे साथ, हमारे स्कूल में PWD ने स्टार्टिंग किया वायरिंग वर्क। अब उस वायरिंग वर्क में क्या होता था कि वो बिल्कुल लाइट गुल हो जाती थी। दिन में तो काम चल जाता, लेकिन शाम को जब सूरज ढलने का टाइम होता था, एट दैट टाइम इट वाज रियली डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू सिट इनसाइड। और वो हाफ एन आवर लगभग 25 मिनट 20 मिनट होते थे हमारे पास में, जिसमें बच्चों के लिए कोई काम नहीं था, बिल्कुल इट वाज ऑलमोस्ट डार्क। तो हमने बाहर ग्राउंड में उन्होंने लाइट का अरेंजमेंट कर दिया था और हमारे पास माइक्रोफोन वगैरह था। तो मैंने टीचर से मीटिंग की और उसका ये हल निकाला कि ठीक है, हम सारे स्टूडेंट्स को बाहर ले आते हैं। और स्टेज हमारे पास, वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट वी हैव अ गुड स्टेज, और उस स्टेज के ऊपर हमने स्टार्ट किया रैंडमली, जो भी आना चाहता है, वॉट एवर टैलेंट यू हैव। यू वोंट बिलीव, 20 दिन बाद जब हमारी लाइट बिल्कुल ठीक हो गई और हमने कहा बच्चों आपकी ये शाम की असेंबली नहीं होगी, दे वर लाइक नहीं सर ये होनी चाहिए, इट हैज़ टू बी। तो अभी भी हम जब गर्मी ज़्यादा होती है जिस दिन, तो उस दिन दोपहर की असेंबली ना करके शाम को असेंबली करते हैं, और उस असेंबली में वो अपने जो भी आइडियाज़ होते हैं, कई बार तो वो टीचर के मिमिक्री ही करते नज़र आते हैं, कई बार वो कुछ नया पोएम लिख कर लाते हैं, कुछ पैरोडी लिख कर लाते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट देयर मोटिवेशन। और उससे हमें क्या हुआ कि हमें अटेंडेंस बहुत अच्छी मिलने लगी क्लासेस में। वंस आई वॉज टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, इट वॉज अबाउट ग्रुप ऑफ 45 टीचर्स। लगभग 5 या 6 घंटे का ट्रेनिंग सेशन था। मेनली इट वाज ऑन मोटिवेशन। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग था, बट उसमें भी मैंने उस दिन टॉपिक लिया मोटिवेशन। आफ्टर द सेशन वाज ओवर, अ टीचर केम टू मी, लिटरली शी वाज हैविंग टीयर्स इन हर आइज। और आई हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट लर्नर्स ऑटोनॉमी, ग्रुप वर्क, पेयर वर्क, फीडबैक एंड ऑल दीज थिंग्स। शी सेड सर मुझे तो लगता है कि मैं बच्चों के साथ बहुत इनजस्टिस कर रही थी अब तक। मैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, व्हाट हैपेंड? शी टोल्ड नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है मैं इतना स्ट्रिक्ट टीचर माने जाती हूँ और मैं बिल्कुल बच्चों को हिलने भी नहीं देती हूँ। मेरी क्लास में कोई बच्चा, नोबडी कैन इवन स्माइल इन माय क्लास, और ये ऐसा 15 साल से चल रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं, आपके रिजल्ट्स देखिए, रिजल्ट्स तो अच्छे ही होंगे, यू आर डिफरेंट टाइप ऑफ अ टीचर। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ख़राब टीचर हैं। तो उनको थोड़ी ढारिश बंदी, और फिर उन्होंने 3 या 4 महीने बाद शी कॉल्ड मी अप कि सर मैंने थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया है, एंड रिजल्ट तो पहले भी अच्छे ही थे, बट नाउ आई एम गेटिंग बेटर रिजल्ट्स। अब आते हैं एक बहुत ही pertinent problem which is available in our schools, truancy, particularly in boys school. Boys are in a habit, वो चाहते हैं कि हम स्कूल से बाहर जल्दी से जल्दी जा सकें। So again we sat together along with the team members and I invited their suggestions. What can we do to stop this? We did some little innovations again, like we started calling parents. And it was a mammoth task, of course, during the parents meeting, and without parents meeting as well, we started calling parents one by one, and we started taking their signatures and their mobile numbers. And whenever there was a problem with any child, we used to call the parent of the child, and they would know this, your child wants to go out.
वो बताते थे नहीं हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको तो हमने किसी कोई काम के लिए नहीं कहा। तो इस तरह से कुछ फ्लुएंसी रुकी, कुछ फ्लुएंसी रुकी इस तरह से कि हमने हर पीरियड में इट वाज अ मैंडेटरी फॉर एवरी सिंगल मॉनिटर एंड टीचर टू मार्क द अटेंडेंस ऑफ एवरी सिंगल चाइल्ड। उससे क्या हुआ कि कोई भी स्टूडेंट बाहर अगर जा रहा है तो हमें क्लासरूम से पता लगेगा, ना कि गेट से पता लगेगा। तो नाउ वी मेड इट अ प्रैक्टिस कि हमारे टीम मेंबर, इस डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर्स किसी को गेट पे नहीं रोकते हैं हम क्लासरूम से। Whenever any team member or I go in the classroom, I just count the heads. Okay, morning में 55 स्टूडेंट्स आए थे, अभी 53 हैं, 2 कहाँ हैं? द मॉनिटर वो टेल मी और द टीचर वो टेल मी, सर 2 या तो हाफ डे लीव लेकर गए हैं या बाहर हैं या वो वॉशरूम वगैरह गए हैं। और अगर वो 2 नहीं हैं स्कूल में तो हम वी मेक इट अ पॉइंट कि नेक्स्ट डे उनके पेरेंट्स के साथ आएंगे वो लोग, और नेक्स्ट डे या जब भी वो स्कूल आएंगे तो दे वोंट बी अलाउड टू सिट इन द क्लासरूम अनलेस एंड अनटिल देयर पेरेंट्स कम। सो आज की डेट में आई एश्योर यू कि कोई भी स्टूडेंट हमारा और अनऑथोराइज बाहर घूमता हुआ नहीं मिलेगा। और अनऑथोराइज मतलब मेरा यह है कि इफ़ एनी चाइल्ड इन एन इमरजेंसी वांट्स टू गो, वी टॉक टू द पेरेंट्स एंड वी गिव अ स्लिप जिसमें मेरा मोहर और स्टैंप साइन होता है, एंड देन दे गिव इट टू द गेट कीपर, देन ओनली द चाइल्ड कैन गो आउट। तो फ्लुएंसी ऑलमोस्ट नील है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही रुक गई होगी, शायद कभी कभी ऐसा हो जाता, बट ऑलमोस्ट इट इज़ नील। और हमारे अगर 2200 स्टूडेंट सुबह आए हैं तो 2200 ही शाम को जाएंगे, apart from those who have got a half day leave. Another point comes about the cleanliness of school, which is really important nowadays. हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं। एक स्टूडेंट्स की आदत होती है वो मिड डे मील खाते हैं और अपना टिफिन वहीं धोने लग जाते हैं जहाँ पानी पीने की जगह होती है। तो हमने उनको मोटिवेट किया, उनको गाइड किया स्टूडेंट्स को। सी दे नीड गाइडेंस। आई ऑलवेज बिलीव दे नीड गाइडेंस। हमें बताने की जरूरत नहीं, गाइड करने की जरूरत होती है। उनको गाइड करना चाहिए, बेटा ये खाने की जगह तो हो सकती है बट ये धोने की जगह नहीं है। मैं भी अपना टिफिन लाता हूँ, देखो मेरा टिफिन मैंने खाया, इसको पैक कर दिया, घर जा करके मैं इसको धोऊंगा। सिमिलरली यू ईट योर लंच, पैक योर लंच बॉक्स एंड टेक इट टू योर होम, और वहाँ धो करके कल वापस लेके आना इसको। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारा खाना बिखरा पड़ा रहता था, कभी कभी बंदर आ जाया करते थे स्कूल के अंदर, अब वो खाना नहीं था, बिखरा नहीं था, वो लोग बच्चे वहाँ धो नहीं रहे थे, पानी पीते हैं, अपना हाथ धोते हैं और वो चले जाते हैं। सो क्लीनलीनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया। सेकेंडली, जैसे हम सबकी प्रैक्टिस होती है, वी गिव डस्टबिन्स टू क्लासेस एंड कॉरिडोर्स, एंड एवरी सिंगल चाइल्ड जिसको भी लगता है कि कहीं गंदी है तो वो खुद ही उठा के, बिकॉज हमारे टीचर ये हम खुद पहले उठा के डालते हैं कोई भी कूड़ा डस्टबिन में, तो उनको लगता है नहीं नहीं सर विल डू इट ऑन योर बिहाफ, और वो हमसे पहले उसको फिर करने की कोशिश करते हैं। सो इट्स लाइक लीडिंग बाई एग्जाम्पल्स। हमारे सारे ही टीचर की ये प्रैक्टिस है। और इवन कोई पेरेंट्स भी आते हैं, हमसे कहते हैं नहीं आप प्लीज़ ये नहीं करेंगे, हाँ आपने देखिए कूड़ा यहाँ फेंका है, तो फ़ौरन उठा लेते हैं। और जो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा यहाँ पर अपने सफाई कर्मचारियों की भी और गेट पे खड़े लोगों की भी, दे आर रियली हेल्पिंग मी आउट। जैसे भी इम्प्लीमेंट करना होता है, दे आर ऑलवेज विद मी। सो इन अ नटशेल आई वुड लाइक टू से वी नीड टू सी what we are teaching, whom we are teaching, and how we are teaching. And if we know these things, of course we are innovative and successful teachers. Thank you very much.